हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण चैप्टर राजनीतिक विज्ञान की। ये चैप्टर जो है हर क्लास के हर बोर्ड के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनके सिलेबस में ये टॉपिक है। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Federalism. There is a important point here is come in this chapter, a feature of Indian federalism. The Constitution of India has adopted two federal features, though it is not in fact a claim that is established in the federations. The question whether the Indian Constitution could be the current of federal constitution travels in their mind of the member of constitutionally is assembly. This question cannot be answered without going into the meaning of federalism and the essential feature that is evidence in the federal state. Let us examine them and try to find out of the whether India is a federation or not. The first here, written constitution. The most important feature of the federation is that its constitution should be written once, so that both the Indian government as well as the state can refer to that as and when to the needed. The Constitution of India is a written document and is the most elaborate constitution of the world. It establishes is a supremacy of constitution because both the union and the state are given power by the constitution as to be independent in their sphere of governance. The next year's irrigate constitution, the procedure of the amending their constitution in the federal system is normally regards. India is a constitution provided that some is amendment is required a special majority, such as amendment has to be passed a majority of total member of each house of parliament as well as by the two-thirds of majority of the member present and voting therein. However, in addition to their process, some amendment must be approved by at least 50% of the state. After this procedure, the amendment is signed by the head of the state, the president, and signed their Indian important amendment can be amended through there is a procedure, and the India's constitution has been to the rightly called to the erased constitution. The next is the federations here, the federalism, there are division of power. In our constitution, there is a clear division of power, so that the state can center required to enact and the regulator as within there is a sphere of activity and the non-volatile is its limits and try to the encourage upon the function of the others. Our constitution enumerate the three lists as wise unions, state and concurrent list. The union list is a consist of 97 subjects of national importance such as a defense, railway, post and telegraph, etc. State list is a consist of 66 subjects of local interest such as a public health, police, etc. The concurrent list has a 47 subjects important to the both the union and state, such as electricity, trade union, economics and social planning, etc. And next here, supremacy of judiciary is another very important feature of federation. In the independent judiciary is to be interpreted their constitution and the maintain its sensitivities. The Supreme Court of India has original judications to settle and rupture between the union and the state. It can declare as a law as unconstitutionally if it is a controversy any provision of constitution. दोस्तों यहाँ पर जो हमारा आया है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक की भारतीय संघवाद की मुख्य विशेषता है। देखिए, संघवाद यानी फेडरलिज्म, संघवाद जो है कई मानने में जो है प्लस 2 वाले बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है और ये जो है बीए वाले बच्चों के लिए भी जरूरी है। कहते हैं भारत के संविधान में संघीय संविधान के लक्षण तो है, किंतु ये संघीय शासन स्थापित करने का जो है दावा नहीं करता है। संविधान सभा के सदस्य यह तय नहीं कर पाए हैं कि भारतीय संविधान को संघीय संविधान कहा जा सकता या नहीं। इस सवाल का जवाब जो है संघवाद के अर्थ को जानने से, इसकी आवश्यकताओं और लक्षणों का जो है पहचाने बिना नहीं पाया जा सकता है। आइए हम इन बातों का जो है परीक्षण करने की कोशिश करें कि ये जो है भारत संघ है अथवा नहीं है। तो सबसे पहले अगर संघ होने के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि लिखित संविधान। तो कहते हैं लिखित संविधान क्या है? किसी भी संघ का सबसे प्रमुख लक्षण यही होता है कि उसके पास एक लिखित संविधान होना चाहिए।
जिसे जरूरत पड़ने पर केंद्र तथा राज्य सरकार मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है और यह दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान माना जाता है। इसमें संविधान की स्वच्छता प्रदान की गई है क्योंकि इसमें जो है केंद्र तथा राज्य के संविधान द्वारा शक्ति प्रदान भी की गई है तथा उन्हें अपने अपने क्षेत्र में शासन की स्वतंत्रता प्रदान भी किया गया है। उसके पश्चात संघीय होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात आता है जटिल संविधान। किसी संवैधानिक पद्धति में संविधान जो है संशोधन सामान्यतः एक जटिल प्रक्रिया होती है। भारतीय संविधान के अनुसार कुछ संशोधन विशेष बहुमत पर निर्भर होता है और इस प्रकार के संशोधन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की संपूर्ण संख्या के अधिकतम सदस्यों की सहमति तथा उपस्थिति सदस्यों के 2/3 मतों के आधार पर होता है। इसके अतिरिक्त कुछ संशोधन 50% राज्य की सहमति से होती है और इस प्रक्रिया के बाद जो संशोधन पर राज्य प्रमुख यानी राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं। साफ शब्दों में अगर देखा जाए तो आपको पता ही होगा कि हमारे बहुमत जो होते हैं कभी भी संसद में पास होते हैं या लोकसभा राज्यसभा में होते हैं 2/3 बहुमत से होते हैं और इसमें जो है सहमति कम से कम 50% होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं ये तब पास माना जाता है जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है और भारत में प्रमुख संशोधन की प्रक्रिया से ही होता है। इसी कारण भारतीय संविधान को जटिल संविधान भी कहा जा सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है शक्ति का विभाजन। देखिए फेडरलिज्म होने के लिए शक्ति का विभाजन भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि संघीय होने का मतलब ही है शक्ति का बंटवारा। हमारे संविधान में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है और इस प्रकार केंद्र तथा राज्य सरकार एक दूसरे के बिना बाधा हुआ पहुंचाते हैं, यानी तो एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचा पाएंगे क्योंकि अपनी सीमाओं का बिना अतिक्रमण किया तथा दूसरे के गतिविधियों में हस्तक्षेप किए बिना सुचारू रूप से अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूची का वर्णन है। इसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कौन कौन सी सूचियाँ हैं, तो आपको याद रखना होगा केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में जो है 97 राष्ट्रीय महत्व को विषय को जो है उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत रक्षा, रेलवे, डाक एवं तार आदि जो है विषय आते हैं। राज्य सूची में जो है 66 स्थानीय महत्व के विषय जैसे कि शिक्षा, जन स्वास्थ्य और पुलिस आदि आते हैं। समवर्ती सूची केंद्र तथा राज्य दोनों के संबंधित जो है 47 महत्वपूर्ण विषय जैसे बिजली, मजदूरी संगठन, आर्थिक सामाजिक योजना आदि सम्मिलित किया गया है। उसके पश्चात आता है न्यायपालिका की स्वच्छता। देखिए संघ के अन्य लक्षणों में एक महत्वपूर्ण लक्षण यह भी है कि उसके पास एक स्वतंत्र न्यायपालिका हो जो कि संविधान की व्याख्या भी करे तथा उसकी पवित्रता की रक्षा भी करे। केंद्र तथा राज्य के बीच जो है संपन्न विवादों को सुलझाना सर्वोच्च न्यायालय का मूल्य क्षेत्र अधिकार होता है। यदि केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा पारित कोई भी कानून संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। The next topic is the nature of Indian federations. There is nature of Indian federation here in a spirit of the fact that Indian constitution establishes a federal structure. It is needed very difficult to put the Indian constitution in the category of the true federation. The framers of their constitution have modified the true nature of Indian federation by the incorporating and contains non-federal feature in its. These are the Article 1 of the Constitution describes India as a union of states, which impels there are two things. First, it is not a result of the agreement among the states, and secondly, the states have no freedom to be scattered or separate from union. Besides, their constitution of their union and the state is a single framework from which is neither can get out and within which there must function. The federation is a union because it is indispensable and help maintaining the unity of the countries. The center appointed the governors of the state and may be take over to the administrations of the state on the recommendations of governor or otherwise. In other words, the governor is the agent of the center in the state. The working of Indian federal system clear reveals that the governor has acted more as center representative than as the head of the state. This enabled the union government to exercise control over the state administrations. The control of union over state after the imposition of the
is a national emergency. The equality of the unit in the federation is a base granted by their equal representation in the upper house of the federal legislatures is mean parliament. However, this is not applicable in the case of Indian state. They have a unique unequal representation in the Rajya Sabha. In a true federation such as that of the United States of America, every state, irrespective of their size, term, area, and population, it is sent two representative in the upper house as a Senate. In addition to all the important is appointment such as a chief election commissioner to the controller and the auditor of general are made by the union government. And besides, there is the single citizenship. There is no provision of the separate constitution for the state. The state cannot be proposed to the amendment to the constitution. As such, amendment can only be made by the union parliament. In order to ensure the uniformity of the administrative system and the maintaining minimum common administrative standard without impairing the federal system, all India service such as the IAS and IPS has been to create which are kept under control of the union. In a financial matter too, the state depend upon the union to the great extent. The state do not pose a equator financial resource to be meet their requirement. And during a financial emergency, their center exercise a fully control over to state finance. And in case of disturbance of many states are part of threat of there is a union government is empowered to the depth of center force in the state or to their disturbed part of the state. And also parliament has by their law may be increasing or decreasing the area of any state and maybe later it is name and boundaries. The federal principle of envisages of dual system of court, but in India we have a unfettered judiciary with their Supreme Court at the apex. The Constitution of India establishes a strong center by the assigning all the important subject to the center as per union list. The state government has a very limited power. Our finance state are dependent on the center. From the above discussion, it is clear that there is a title of the favor of the center at the cost of state. The states have to work in the close and cooperation with the center. This has a lent to the support to the contentions that is the Indian constitution is a federal in form, but is a unitary is a spirit. Constitutional is sport has been called it is a semi-federal or quasi-federal system. यदि बात यहाँ पर हम करें भारतीय संघ के स्वरूप के तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। कहते हैं भारत का संविधान एक संघीय संरचना की स्थापना करता है और इस तथ्य के बावजूद भारतीय संविधान को जो है विशुद्ध रूप से संघीय श्रेणी में रखना कठिन भी है। संविधान के निर्माताओं ने इसके संघीय लक्षणों में परिवर्तन करके इनमें कुछ गैर संघीय विशेषताओं भी जोड़ दी गई है। कहते हैं ये जोड़ी गई विशेषता कुछ इस प्रकार है। अगर देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 1 में यह कहा गया है कि भारत राज्य का एक समूह है। इसमें दो बातें निहित होती है। पहला तो यह है कि राज्यों के बीच आपसी समझौते का परिणाम नहीं है और दूसरी यह कि राज्यों को केंद्र से अलग हो जाने अथवा स्वतंत्र रूप से बाहर करने की छूट नहीं है। इसके अलावा केंद्र तथा राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान है जिसके भीतर ही केंद्र तथा राज्य दोनों के कार्य करना है। संघ एक समूह है क्योंकि इसे समाप्त नहीं किया जा सकता एवं यह देश में एकता कायम रखने में काफ़ी इम्पोर्टेंट अपना योगदान भी देता है। कहते हैं राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र ही करता है तथा इसकी जो है अनुशंसा पर या उसके बगैर भी राज्य प्रशासन के केंद्र अपने हाथों में ले सकता है। दूसरे शब्दों में राज्य में राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि होता है और भारतीय संघीय व्यवस्था के कार्यबंध ने अब साफ कर दिया है कि राज्यपाल अधिकतर राज्य के मुखिया के रूप में न होकर केंद्र के एजेंडे के रूप में कार्य करता है। इसका मतलब है कि केंद्र के पास राज्य प्रशासन को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। अगर हम संघवाद की सबसे पहली और आवश्यक मांग यही होती है कि संसद के ऊपरी सदनों में राज्यों को सामान्य प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। अमेरिकी सीनेट के ऊपरी सदन में प्रत्येक राज्य को 2 प्रतिनिधित्व के लिए सीटें आरक्षित होती है। आपको अगर पता होगा कि अमेरिका में 50 टोटल जो है
राज्य हैं और 50 राज्य में से दो दो व्यक्तियों को जो है सीनेट के लिए चुना जाता है। तो इससे ये होता है कि इसमें आरक्षित होती है, किंतु हमारे संविधान में इस प्रकार की बराबरी का कोई प्रावधान नहीं है और न ही राज्यसभा में इस प्रकार के प्रतिनिधित्व के लिए सीटें का आरक्षण है। तो आप समझ सकते हो कि अमेरिका जो है कहते हैं वहाँ पर जो निचले सदन है बिल्कुल ही कमज़ोर है, लेकिन भारत में अगर निचले सदन की बात करें तो ये काफ़ी स्ट्रोंग है। अगर अमेरिका की बात करें, ऊपरी सदन की बात करें तो वो काफ़ी जो है मजबूत है, लेकिन अगर इंडिया की हम बात करें ऊपरी सदन की तो ये बहुत ही कमज़ोर है। तो ये कहते हैं अमेरिका और इंडिया में विपरीत है, सब कुछ विपरीत है, क्योंकि हमारा संविधान कई मायने में जो है आप देखोगे तो ब्रिटेन के संविधान से काफ़ी मिलती जुलती ही है। इसी क्रम में लगभग सभी महत्वपूर्ण पद जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त, महालेखित परीक्षक आदि की नियुक्तियां केंद्र सरकार द्वारा ही किया जाता है। यहाँ इकहरी नागरिकता का प्रावधान है और यहाँ अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग संविधान का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान में किसी भी प्रकार के संशोधन का ये पहल केंद्र सरकार ही कर सकता है। राज्य सरकार के संविधान में किसी संशोधन का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, यानी राज्य सरकार में कोई तरह का ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। सारे के सारे जो होते हैं आपको पता ही होगा केंद्र में ही सरकार के रूल रेगुलेशन बनते हैं। दूसरी बात अगर देखा जाए कड़ी नागरिकता का, कहते हैं अमेरिका में जो है डबल जो है सिटीजनशिप लिया जा सकता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो है सिंगल सिटीजनशिप का ही प्रावधान किया गया है, यानी आप भारत में कहीं भी रहो आपका एक ही जगह के जो है नागरिकता मिलेगी। इसी क्रम में संघीय ढांचों को छोड़े बिना यहाँ एकरूपता तथा न्यूनतम साझा जो है प्रशासनिक सत्र को बनाए रखने के लिए भी प्रावधान है। इसके लिए अखिल भारतीय सेवाओं जैसे कि आईएएस और आईपीएस का जो है गठन किया गया है, जो कि केंद्र द्वारा नियंत्रित होती है। वित्तीय मामलों में भी राज्य केंद्र के ऊपर आश्रित रहता है और राज्य अपनी जरूरतों के वित्तीय साधन भी खुद नहीं अर्जित कर सकते हैं। वित्तीय संकट के समय राज्य की वित्तीय स्थिति पर केंद्र का पूरा नियंत्रण हो जाता है। किसी राज्य में यदि किसी प्रकार की अशांति उत्पन्न हो जाते हैं तो केंद्र को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उस राज्य में अथवा उस राज्य के अशांत हिस्से में केंद्रीय पुलिस बल के नियंत्रण के लिए भेजे। संसद को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा अथवा घटा सकती है और साथ ही वह किसी भी राज्य के नाम अथवा उसकी सीमा रेखा में बदलाव अथवा परिवर्तन कर सकती है। उसके पश्चात है संघीय सिद्धांत दोहरी न्यायपालिका की व्यवस्था भी करता है, यानी देखा जाए तो संघीय सिद्धांत के अनुसार जो है दोहरी न्यायपालिका की व्यवस्था करती है। परंतु भारत में एकल न्यायपालिका है जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है, यानी भारत में एकल है तो यहाँ पर जो है संघीय होने के दावा को नकारा जा सकता है। संविधान में केंद्रीय सूची के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण विषयों को शामिल करने के लिए केंद्र के अत्यंत शक्तिशाली बनाया गया है, यानी कोई भी विषय जो होता है केंद्र द्वारा ही पारित होती है। राज्य सरकार की शक्तियाँ बहुत ही सीमित होती है और वित्तीय रूप से राज्य केंद्र पर ही निर्भर रहता है, यानी राज्य के सरकार की शक्तियाँ बहुत ही कम होती है। उपरोक्त चर्चा के बाद अब यह बात स्पष्ट हो गया है कि राज्य की शक्तियों को कम करते हुए शक्तियों के झुकाव केंद्र सरकार के पक्ष में है। राज्यों को केंद्र से निकट सहयोग करके ही चलाना पड़ता है और इस प्रकार इन बातों से इस विवाद को बल मिलता है कि भारतीय संविधान अपने स्वरूपों में तो संघात्मक है किंतु इसकी आत्मा एकात्मक है। यानी देखा जाए तो भारतीय संविधान अपने स्वरूप में संघात्मक है लेकिन आत्मा इसका जो है एकात्मक है। संविधान विशेषज्ञों ने इसे अर्धसंघीय भी कहा है, यानी अर्धसंघीय। The next topic is the central-state relations. We have seen that the Constitution of India is a provide for a federal system. Both the union and the state are created by the Constitution and derive their respective authority from it. Yet there is the criticism that India is a federal state but with the unitary of features. How far is there this criticism is valid? And there is to understand this is the describable to study the relationship between the union and state. The relation between the center and the state which the constitute there is a core of federalism has been to the immigrated is a parts is a 11 and 12 of the constitution under the head legislative and administrative and financial relation. Let us examine them one by one. The first here the legislative relations. The regardings our legislative relation, there is a threefold division of the power in the Constitution. We have a following their system in which there are two lists of legislative power, one for the center and other for the state. Now as the union list and the state list representative is the additionally list called to the concurrent list also has been
added. The union list, which is the consist of the 97 subject of the national interest in the largest of the three lists. Some of the important subjects included in this list are defense, railway, post, telegram, is the income tax and the custom duties, etc. The parliament has exclusives is a power of enact law on the subject including in the union list for the entire country. And the state list consists of the 63 subjects of the local interest. Some of the important subjects included in this list are trade and commerce within the state, police, fisheries and forest, industry, etc. The state legislature has been to the empowered to make a law on the subject included in the state list. The concurrent list is the consist of 47 subjects of common interest to the both the union and the state. Some of the subjects included in the list are stamp duties, drugs, poisons, electricity, newspaper, etc. Both the parliament and the state legislatures can be make law on the subject included in this list. But in case of conflict between the unions and the state law of relating to the same subject, the union law prevails over to state law. Power to legislature on all the subject not included in any of the three lists vested with the parliament. Under content is a circumstance their parliament can legislate on the subject are mentioned in the state list. The next year is the administrative relation. The framers of the Indian Constitution never to intend to create administrative cooperations and coordination between to the central and state. There is the most important is a create is a cooperation and coordination between two central and state. The executive power of the state is to be exercised in such a way as the ensure a compliance with the law made by the parliament. Further, union executive is empowered to give a direction to a state if the necessary for the requested purpose, and the union government can issue the direction to that their state is ensure the compliance with their law of the parliament and construction of maintenance of mean of communication declared to be a national and military is important, and also on the measure for the protections railway. And in addition to all this, the parliament can be along is a adjudicate on inter-state rights rupture. And also is a provisions has been to made for the constituting in the interstate counseling to the advice to the president on interstate rupture. Even the state governments may be delegate some of the administrative function relating to be the state subject to union government for the special period. A Constitution of India has contained special provision to the ensure uniformity of their administrative system. This includes the creation of all India service such as the IAS and IPS is a placing member of this service in the key administrative position in the state. The presence of all India service officer is the further paves way to the central government exercise to the authorities and control over the state. The member of this service are the regulated by their center and but are appointment in the state. No disciplinary action can be taken against them to the state government without the provision of center. The Constitution also made a provision for the creation of new All India Service by Parliament on the recommendations of Rajya Sabha. The President also put the entire control of the state administrative machinery under to control of the Union, which you will be studying in the detail will be going through their lesson emergency provision. You would we also recall that the union executive is empowered to give such a direction to a state as the many appear necessary for a purpose to a union government. The union government has a wide power to the issue direction based on the subjective view of the union and may therefore interfere with their state is autonomy in there is a field of administrations. Ordinarily, the center police force and army they are posted to be state at the request of the state government. However, there has been to the occasions where to the CRPF and BSF has been deployed with the states is a much against the state wish of the state government.
Thus, there the center play a very important role in the administrative sphere of active concerning their state. The next area of financial relation. The distribution of financial resource, especially critical, is determining of the nature of the state is a relation with the center. Both the union and the state has been to the provided with the independent source of the revenue by the constitution. The parliament can the levies of tax on the subject included in the union list. The state can list as a taxes on the subject in their state list. By and the large taxes that have on the interstate based on the levied by their center, and this is the local based by the state. The union's list of the consists item taxations which is the fall under the following category. The first year taxes is evaluated by the union but is collected and is appropriated by their state such as stamps, duty and duties of excise on the medicinally and the toilet preparation etc. And the taxes is involved by the collected by the union but assigned to be a state-wise as the railway, sea or the air etc. Taxes involved there is a collection by the center and may be distributed between to the center and the state if the parliament by the law so provides. Such as union exercise duties, exercise on the toilet preparation etc. And taxes involved there is a collection and the remaining by the center such as the custom, surcharge, in income tax etc. The tax involved there is a collection by the center and distributed between to the union and the state such as a tax other than agriculture etc. And it is clear that is the financial sphere to the center to the better implement the center can is exercise control over the state finance and the grant in the aid of both general and special to the meet the expenditure on the development scheme. During the financial emergency, the president has the power of suspended to the provision regarding to the division of taxes between the center and state, and he can also impose the other restriction on the expenses of the state. A state plan that formed within the is a properties of the center plan to there as executed with their approval of the planning commission. Further, state has to be carried out of the center is a sponsored and scheme which the center give to the grant and the condition under which these are to be made. The planning commission has a create and over centralize a planning system. No innovatives is left to be state and the central formulate a schemes has been is improved with the unimaginatives imposed upon them. यहाँ पर दोस्तों जो हमारा आया है वो केंद्र राज्य संबंध। देखिए हम इस बात से पहले चर्चा कर चुके हैं कि भारतीय संविधान एक संघात्मक ढांचे का निर्माण करता है और केंद्र राज्य दोनों का निर्माण जो है संविधान द्वारा ही होता है और दोनों अपनी शक्ति जो है संविधान से प्राप्त करते हैं। और कुछ लोगों का यह भी गंभीर आरोप है कि भारत एक संघ है तो किंतु इसमें पूरक एकात्मक लक्षण भी कुछ मौजूद है। यह आलोचना कहाँ तक सही है, इस बात को समझने के लिए केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। संविधान के 11 और 12 के विधायी प्रशासनिक और तथा वित्तीय आधारों पर केंद्र तथा राज्य के बीच संबंधों की चर्चा हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा कैटेगरी आता है विधायी संबंध। देखिए हमारे संविधान में विधायी संबंधों को लेकर अधिकारों का त्रिस्तरीय विभाजन किया गया है। विधायी अधिकारियों के संबंध में 2 सूचियां होती है। पहली सूची जो है केंद्र सूची और दूसरी सूची राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य सूची भी इसके साथ जोड़ी दी गई है जिसे हम समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं। इन तीनों सूचियों में सबसे लंबी सूची केंद्र सूची की है जिसमें राष्ट्रीय हितों की संबंधित जो है 97 मामले का उल्लेख है। इसमें रक्षा, रेलवे, डाक तार, आयकर, अबकारी आदि मामले आते हैं। संसद को संपूर्ण देश में कानून बनाने तथा केंद्रीय सूची का कार्य करने के लिए विशेष अधिकार भी प्राप्त है। उसके पश्चात राज्य सूची में जो है स्थानीय मुद्दे में संबंधित 66 जो विषय का उल्लेख है। इसमें से कुछ जो है महत्वपूर्ण मामले जैसे राज्य में वर्णित तथा जो है व्यापार, पुलिस, मत्स्य पालन, वन उद्योग आदि उल्लेखित है। विधानमंडल को राज्य सूची में सम्मिलित सभी विषयों पर कानून बनाने का पुण्य अधिकार प्राप्त है किंतु संबंधित राज्य सिर्फ अपने राज्य में संबंधित मुद्दे पर ही कानून बना सकता है। समवर्ती सूची केंद्र तथा राज्य दोनों से संबंधित जो है 47 मामलों का उल्लेख हुआ है। इसमें मुद्रिक, शुल्क और
शुल्क और औषधि, बिजली, अखबार आदि विषय महत्वपूर्ण है। संसद तथा विषय जो है विधानमंडल दोनों ही सूची में सम्मिलित विषय का कानून बना सकते हैं। यदि किन्हीं स्थिति में एक ही विषय पर राज्य तथा केंद्र द्वारा बनाए गए कानून के बीच द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगी। यदि इन तीनों सूचियों में सम्मिलित विषयों को अतिरिक्त किसी विषय पर कानून बनाना है तो उस पर जो है संसद का विचार करती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है प्रशासनिक संबंध। देखिए, केंद्र तथा राज्य के बीच जो है प्रशासनिक संबंधों को लेकर हमारे संविधान निर्माताओं के मन में कभी भी दो स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के निर्माण की इच्छा नहीं रही, बल्कि उन्होंने दोनों के बीच जो है कहते हैं कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बनाए रखने की कोशिश किया। यानी देखा जाए तो समन्वय और सहभागिता जो है बनाना काफ़ी उन्होंने महत्वपूर्ण समझा। राज्य के कार्यपालिका संबंधी अधिकार संसद द्वारा बनाए गए कानून के जो है भीतर ही प्रभावित होते रहते हैं। इसके अलावा यदि कभी जरूरत पड़े तो केंद्रीय कार्यपालिका राज्य कार्यपालिका को निर्देश भी दे सकते हैं। केंद्रीय सरकार राज्य को संसदीय कानून के अंतर्गत राष्ट्रीय एवं सैनिक महत्व को दृष्टिकोण से संचार, रेलवे आदि सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी करती है। इस क्रम में अगर हम देखें अंतर्जातीय नदियों के संबंध विवादों पर संसद केवल अकेले फैसला कर सकती है। इसके अलावा एक प्रावधान यह भी है कि राज्य के बीच उत्पन्न विवादों पर राष्ट्रपति की सलाह लेने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भी किया जाए। यहाँ तक कि राज्य से संबंधित कुछ प्रशासनिक कार्य राज्य सरकार एक निश्चित अवधि के लिए केंद्र सरकार को सौंप भी सकती है। भारत के संविधान में प्रशासनिक प्रणाली की एकरूपता का प्रावधान है और इसके लिए अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का गठन भी किया गया है और उसके द्वारा नियुक्तियां अधिकारी जैसे आईएएस और आईपीएस अथवा अन्य नियुक्तियां पदाधिकारी राज्य प्रशासन में धुरी का काम करते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारियों के माध्यम से केंद्र सरकार अपनी सत्ता का इस्तेमाल करते हुए राज्य पर नियंत्रण रखती है। इन सेवाओं के सदस्य जो है केंद्र द्वारा नियुक्त होते हैं तथा राज्य में सेवा भी देते हैं। राज्य सरकार केंद्र की अनुमति के बिना उसके खिलाफ कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती है। संविधान में यह भी प्रावधान है कि राज्यसभा के अनुमोदन यानी संशोधित पर संसद नए अखिल भारतीय सेवाओं का गठन भी कर सकती है और केंद्र सरकार के माध्यम से राष्ट्रपति राज्य प्रशासन पर नियंत्रण भी रखता है। और इस बात को समझने के लिए जब आपातकालीन प्रावधान का अध्ययन भी करना जरूरी होगा। जो हमारा चैप्टर आपातकाल होगा उसमें हम सारी बातों को जो है डिटेल से पढ़ेंगे। आपको यह भी बात याद होगी कि जरूरत पड़ने पर केंद्रीय कार्यपालिका और जो है कार्यपालिका की जो प्रशासनिक निर्देश दे सकती है। यानी केंद्रीय अथवा राज्य प्रशासन की जो है सत्ता पर निर्देश जारी करने के संबंधी केंद्र सरकार को विस्तृत अधिकार प्राप्त है। राज्य के आग्रह पर केंद्र सरकार केंद्रीय पुलिस बल अथवा सेना को कहीं भी नियुक्त कर सकता है और यदि कोई ऐसा अवसर आया तो राज्य के हितों का ध्यान रखते हुए केंद्रीय पुलिस बल तथा सीमा सुरक्षा बल को पूरे राज्य में फैलाया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्य प्रशासन केंद्र एक बहुत ही अहम भूमिका अदा भी करती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष वित्तीय संबंध। देखिए, केंद्र के साथ राज्य के संबंधों के निर्धारण में राष्ट्रीय संसाधनों का बंटवारा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। संविधान में केंद्र और राज्य दोनों के लिए स्वतंत्र राष्ट्रीय संसाधनों की व्यवस्था की गई है। संघीय सूची में शामिल विषय पर संसद का कर लगा सकती है और राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार कर लगा सकती है। साधारणतः अंतर्राज्यीय जो है करों की उगाही जो है आगाही केंद्र सरकार द्वारा तथा स्थानीय करों की उगाही जो है राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है। कहते हैं अगर देखा जाए यहाँ पर तो केंद्र सूची में निबंध करे की आगाही निम्न श्रेणी में की जा सकती है। करों का निर्धारण तो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है किंतु इनका आकलन और संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। जैसे मुद्रक शुल्क, दवाई पर उत्पादन कर, प्रसाधन संबंधी प्रस्तुत आदि। रेलवे, समुद्री तथा हवाई करों का जो है निर्धारण करना, उगाही करना केंद्र का ही कार्य है किंतु उन्हें राज्य को दे दिया जाता है। यदि संसद यह कानून बना दे कि जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क अथवा प्रसाधन संबंधी वस्तुओं पर लगाए जाने वाले करों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच होना चाहिए, तब इनमें संबंधित करों की आगाही और संकलन का कहते कार्य तो केंद्र करता है किंतु केंद्र एवं राज्य के बीच करों का बंटवारा हो जाता है। कहते केंद्र द्वारा निर्धारण एवं संकलन किए गए कर जिनका संचालन केंद्र करता है, जैसे अभिकारी अथवा आयकर आदि की संबंधित कर। केंद्र द्वारा निर्धारित कर जिनका संकलन संचालन केंद्र द्वारा किया जाता है किंतु केंद्र तथा राज्य के बीच उसका बंटवारा हो जाता है, जैसे कृषि का अलावा लगाया गया कर।
इस प्रकार वित्तीय क्षेत्र में भी केंद्र का बेहतर संसाधन उपलब्ध है। केंद्र राज्य के वित्तीय संसाधनों पर अपना नियंत्रण रखता है तथा राज्य की विकास योजनाओं के लेखा जोखा के आकलन के आधार पर सामान्य तथा विशेष दोनों प्रकार की स्थितियों में वह राज्य के वित्तीय सहायता प्रदान भी करता है। वित्तीय आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्य के बीच होने वाले करों के बंटवारे को स्थगित कर सकता है और राज्य के कुछ खर्चों पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। राज्य की योजना का निर्धारण केंद्र की अगर देखा जाए तो प्राथमिकताओं के अनुरूप ही होती है एवं उनका कार्यान्वयन तथा योजना आयोग की समिति से ही होती है। इसके अलावा राज्य को केंद्र द्वारा आयोजित योजनाओं को लागू भी करना पड़ता है, जिसके लिए केंद्र ही अनुदान देता है एवं शर्त भी रखता है। योजना आयोग के जो अति केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था बना दी है। राज्य के पास अगुवाई का कोई माध्यम नहीं है तथा केंद्रीय रूप से निर्धारित योजना जो है अव्यवहारिक रूप से लंब एवं बगैर उनकी स्थिति समझे उनके ऊपर थोप भी दी जाती है। The next topic is a demand and a great autonomy for the state. The founding father of Indian Constitution were deeply concerned about there is ensuring there is a unity and integrity of the country. They were aware of the force of is a descriptions and is a disunities as the working within the country. This is a dangerous at the time of independence could be handled only by the strong government at the center. Therefore, the framework of the Constitution assigned as the predominant role of the center. At the same time, there made a provision for the establishment of cooperative federalism. The working of Indian federations during to the last 5 decades clearly show that there is a relation between to the center and state has not away been the coordinators. The Administrative Reform Commission and several other commissions were appointed by the Government of India from time to time regulate center-state relation. The Union Government appointed a Sarkari Commission to the suggest way and mean to the improve a central-state relation. The recommendations of the Sarkari is a commission is assumed the important so as to involve and there is a appreciate policy in the area of regulatives, administrative and financial relation. And it has not a suggested is a whole soul structurally change in the fundamental fabric of the constitutions. It felt that federalism is a more and functional agreement for the cooperatives action than to the static is an institutionally concept. The Commission strongly recommended the establishment of is a permanent interstate counseling. In addition, it is desired that both the center and the state should have to the concern from their development of backward territory or area. If the economical development of these backward regions and undertaken in the planning manner, the separate list is a redundancy will be automatically controlled. Difference between the union and the state should be resolved by the mature constitutions. It has taken to favorable view on the demand of the state to provide the more financial resource at their disposal. In order to improve center-state relation in the country, it is suggested economics, liberalization and suitable is abundant to be the constitution. अगर हम अगली पॉइंट की बात करें तो कहते हैं राज्य के अधिक स्वायत्तता की मांग की गई है। भारत संविधान के निर्माता देश की एकता अखंडता के प्रति सजग थे। उन्हें देश की एकता एवं अखंडता को तोड़ने वाली शक्तियों की जानकारी भी थी। उनको स्वतंत्रता के समय यह शक्तिशाली केंद्र सरकार अथवा आवश्यक थी कि इन खतरों का सामना कर सकती थी। अंत संविधान निर्माताओं ने केंद्र और एक प्रभावशाली भूमिका निर्धारित की। साथ ही साथ उन्होंने एक सहकारी संघ की स्थापना भी की। पिछले 5 दशकों में भारतीय संघ के द्वारा किए गए कार्य स्पष्ट है कि केंद्र और राज्य के बीच हमेशा हार्दिक संबंध नहीं रहे हैं, यानी देखा जाए तो कभी भी वेलकम नहीं रही है राज्य और केंद्र सरकार के बीच। भारत सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के जो सुचारू रूप से चलाने के लिए समय समय पर प्रशासनिक सुधार भी आयोग व अन्य आयोग बनाए हैं। केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के रास्ते सुलझाने के लिए सहकारी आयोग का गठन भी किया गया है। कहते हैं सरकारी आयोग की सिफारिश द्वारा प्रशासनिक विधायी और वित्तीय संबंधों की महत्ता का पता चलता है। इसने संविधान की मौलिक संरचना में परिवर्तन भी की है, कभी सलाह नहीं दी है। इसके अनुसार संघात्मक होना अधिक अच्छी व्यवस्था है, बजाय दृढ़
स्थापनिक कल्पना की। आयोग ने स्थायी अंतरराज्यीय परिषद की जो इस स्थान पर जोर दिया है। इसके अतिरिक्त से इस बात पर भी बल दिया गया है कि केंद्र और राज्य दोनों को ही पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए ये प्रति सजग रहना चाहिए। यदि इसे एक सुव्यवस्थित प्रकार से किया जाए तो अलगवादी शक्ति जो है स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। आपसी सलाह मशवरे द्वारा संघ और राज्य के अपने अंतरों को जो है समाप्त करने की कोशिश करना चाहिए। यानी राज्य और जो है सरकार, केंद्र सरकार आपस में तालमेल बिठाए तो देश के विकास में जो है अग्रसर होना कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगा। राज्य द्वारा अधिक वित्तीय सहायता की मांग को आयोग को उचित ठहराया भी है। केंद्र राज्य के संबंध सुधारने के लिए आयोग ने आर्थिक उदारीकरण और संविधान के संशोधन की सिफारिश भी किया है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आगे का अगर चैप्टर देखोगे तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो आगे के चैप्टर देखना मत भूलना। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है, और व्हाट्सअप स्टेटस पे जो है इसका कॉपी को लगाना तो भूलना ही नहीं है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि बाद में अगर आप टॉपिक को अगर खोजोगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर में मिलेगा तो वो शायद आप रिसर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको शायद प्राप्त नहीं होगा। आपको वो वीडियो प्राप्त होगा जो पुराने हैं, जो दूसरे इंस्टीट्यूशन के हैं। तो अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर के अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको त्रिपाण स्टडी सेंटर के टॉपिक ही ये पसंद आएंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ही सही रहेगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, अगर इसके वीडियो वाले में जाओगे तो सारे वीडियो जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर के आपको प्राप्त हो जाएगा, और जो टॉपिक आपको अच्छा लगता है उसको सेव करके जो है आप लाभान्वित हो सकते हो।